हरि बोल निताय गौर हरि बोल। अंग प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौरांग भगवान, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का, विशेष रूप से साधक मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम रूपी अभूतपूर्व अनूठे सौभाग्य से हम हमारा परिचय कराने, उसके प्रति हमारा आकर्षण, अंततः लोभ उत्पन्न करने के मनोनिष्ठ को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हम सब परम सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है कि हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य कहलाते हैं, उनकी महावदान्यता का कारण ही है कि जो चीज अति दुर्लभ अनंत काल से जीव जगत और बड़े बड़े महापुरुषों महाजनों के लिए भी जो अप्राप्य रही है, अप्राप्य, उस अति दुर्लभ राधा दास्यम कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम को प्रदान करने हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण और उनके जन पार्षदों ने जो स्वयं राधा दास्यम भाव को ही प्राप्त है, जो राधा रानी की अंतरंग किंकरिया है, मंजरिया है, उन्होंने ही हम जैसों के परम लाभ हेतु एक साधक आवेश का आदर्श स्थापित किया है। वर्तमान में हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की श्री विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ का रसपान कर रहे हैं, जिसमें राधा कुंड पर नित्य ही प्राय स्वरूपावेश में आविष्ट रहते हुए अंतर राज्य की जो स्फूर्तियां प्राप्त होती है, उन्हें बार 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 जिस व्यग्रता और सेवा प्राप्ति, दर्शन प्राप्ति उत्कंठा को व्यक्त करती है, हम साधकों के लिए तो वो परम संजीवनी है। हम इस जिस भाव से हम संक्रमित होना चाहते हैं, इस कृपा धारा से संक्रमित होना चाहते हैं, उसकी विषय वस्तु सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग नेसेसरी फॉर दैट, जो भी आवश्यक है, एवरीथिंग इज provided. Only thing needed on our part is that we also boost ourselves or somehow bring ourselves to the point of desiring it, and desiring it so much that so much desiring becomes our deserving. Otherwise, deserving has no possibility. The deserving is not by any qualification, by any sadhana, or by any other means, only by desiring it so much. Tatra laulyam api mulyam ekalam. Only one price that can give us that. Laulyam, intense greed for it. Desiring is so much, correct? Same thing, greed. So how to get that greed price? Only price to achieve Sri Radha Dashyam, or the sentiment, or the eligibility is to become infected with that bhava,
the greed, you know. So wherever the greed is available means wherever we perceive, or where we spot the person infused with greed for that very thing which we desire, because Mahaprabhu wants to give us. Because it is the desire of Mahaprabhu. For living entities like us, we simply have to desire it and somehow spot where the greed for it is available. And that is called satsang. So we associate with such saintly people, such great stalwarts, Mahashayas, We describe in Prem Bhakti Chandrika, who is Mahashay? One who is endowed with the intense desire to attain the service of the lotus feet of Srimati Radharani. So one who is imbued and infected, infused and obsessed with that Manjari Bhava or Bhavollas Rati, where one is so biasedly attached to Srimati Radharani. She's more attached, more inclined towards Krishna under all circumstances. And she feels very proud of being very biased in favor of Radharani under all circumstances. And for her, her Swamini, Srimati Radhika Rani, is always right. Of course, Krishna is always found at fault, although no faults can touch Krishna. But still in Leela, different, only to enhance the rasa or the flavor, like in a wrestling match or in any competitive, both are very competent. But somehow that our Swamini, with the assistance of us Manjaris, us Kinkaris, always becomes victorious. So that is the special pride of Manjari. She is a maid servant of the Supreme Samragyi or Empress, who rules over all and nobody can rule over her. Correct? So we don't have to worry and fear anyone, including Krishna. So that's the beauty of this most inner circle of Radha Krishna pastimes. And in that regard, we are being fed such a feast of this rasamay melo, sweet melo of conjugal dealings and all these things in continuity. Very confidential. How confidential these inquiries are. So I started speaking English, but I have to keep track. So किंकरिया राधा रानी की कितनी कॉन्फिडेंशियल, कितनी अंतरंग है, इसका अंदाज, बिकॉज राधा रानी विल हेजिटेट, राधा रानी को संकोच होगा अपनी सखियों को भी कुछ काम सेवा करवाने में, लेकिन वो सेवा और वो अंतरंग कार्य राधा रानी अपनी किंकरी से करवा, तुलसी मंजरी से करवाती है। विशेष शास्त्रों में कहा गया है कि जो राधा रानी की अंतरंग सखियां हैं, सखियों का कार्य क्या है? प्रेम लीला विहाराणाम सम्यक विस्तारिका सखी। श्री राधा कृष्ण के प्रेम लीला और विहार की पुष्टि एवं विस्तार करने वाली हैं ये सखियां। सखियां आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट नॉट एज कॉन्फिडेंशियल एज द मंजरी। सखी बिना ए लीला पुष्टि नाई हाय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। Without the help of the Sakhis, the Leelas don't become, enhanced, nourished. The help of Sakhis is very essential. The set Radharani and Krishna in motion, as we studied the other day, correct? 19 kind of sevas Sakhis perform. So that is the boost to, to get them set to go. So without the help of the Sakhis, the Leela pastime between the divine couple, it doesn't get nourished, cannot be enhanced. So by doing those activities, the Sakhis relish the intimate association
or the mutually conducive, favorable association of the divine couple. They are ready to now enter there in the seclusion in the Nikunja Mandir. That's where the Sakhis leave that place, because Radharani just as she is माधुर्य माधुर्य आस्वादन करते हैं, लेकिन राधा रानी अपनी सखियों को भी भगवान के संगम के सुख से परिचित करवाती है। तो उस दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए सखिया भी नायिका हो जाती हैं। तो एक नायिका को अपने प्रियतम के साथ दूसरी नायिकाओं की इस उपस्थिति में संकोच होता है। किंकरिया नायिका हो सकती है, फिर उन्हें नायिका होने में कोई स्वप्न में भी वो कृष्ण जो एकमात्र नायक है उनके साथ मिलित होने की कोई आकांक्षा नहीं। केवल वो तो राधा रानी के चरणों की सेवा और अनुकूल बन के ही, इसलिए वो राधा रानी की इतनी अंतरंग हो गई है कि अंतरंग विलास के दरमियान भी किंकरियों की उपस्थिति तभी होती है जब उस समय कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, राधा कृष्ण एक दूसरे में अभिभूत हो, एक दूसरे में मग्न हो, उस समय कुछ रुकावट या कुछ चीज या सेवा की आवश्यकता हो, तो उस वहां पर नहीं संकोच किंकरिया ही उस अवस्था में भी राधा श्याम से एक दूसरे के शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इस प्रकार अभिभूत होकर उस अवस्था में भी किंकरियों की उपस्थिति या किंकरियों का प्रवेश उस निकुंज मंदिर में राधा रानी या श्याम सुंदर को कोई संकोच प्रदान नहीं करते। इतनी अंतरंग होने के कारण बिल्कुल निसंकोच सखियों के साथ संकोच है, किंतु निसंकोच सेवा में मंजरियों का ही एकमात्र अधिकार है। महाभाव का स्वभाव है, महाभाव था राधा रानी, महाभाव का स्वभाव है श्याम सुंदर को सुखी करना, और मंजरियों का स्वभाव है युगल की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। किस प्रकार की अंतरंग सेवा का हमने चित्रण हुआ था पिछले श्लोक में। सेवा सुख के साथ साथ रहस्यमय लीला के माध्यम से युगल माधुरी का आस्वादन। सेवा सुख के साथ साथ रहस्यमय लीला, अंतरंग लीला के माध्यम से युगल माधुरी का आस्वादन। सभी शास्त्रों का मत है कि श्री कृष्ण निरतिशय सुंदर है, अतिशय सुंदर। कृष्ण इज सो कनिंगली अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। किंतु श्रीमद् भागवत के मत में वही सौंदर्य श्री राधा के संग में तो और भी रमणीय हो उठता है। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपी स्वयं मदन मोहित। Krishna in reciprocation, sometimes he also becomes involved with others, but only when Radharani is not available. But with Radharani, when Krishna is with Radharani, then nobody can involve Krishna. Krishna becomes exclusively devoted and obsessed or controlled, subjugated by Srimati Radharani. That is the impact Radharani has over him. So when Krishna is with Radharani, then he becomes extra beautiful, extra enchanting. So in Ras Leela also, we find that Krishna was next to each gopis. रास मंडल में भी ब्रज सुंदरियों के पार्श्व में बगल में श्री कृष्ण ने अतिशय शोभा धारण की थी। सर्वोपरि कौन उन सबके बीच में? राधा रानी। राधा रानी जैसी राधा रानी है। राधा रानी इज मैचलेस। राधा रानी superlatively exclusive in her expression of loving sentiment, bhava, and the unlimited variegatedness in her expression of bhava, to enchant, to subjugate and control Krishna completely. Krishna finds no distraction in the presence of Srimati Radhika. That is the thing. And how Radhani has captured Krishna's attention, and those who are
those who are experts in relishing the conjugal togetherness of the divine couple. How they describe their beauty. The description is very wonderful. Like there's a pond of love, correct? प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण है प्रफुल्ल कमल. So in that love pond, Krishna is described as the fully blossomed lotus. प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण है प्रफुल्ल कमल, श्री राधा है प्रभाती अरुणिमा. The lotus blossoms in the sunshine. So Radhani is that sunshine. Radhani वो sunshine है जिसके प्रभाव में, by whose influence, by whose touch, the Krishna lotus blossoms. तो प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण है प्रफुल्ल कमल, श्री राधा प्रभाती अरुणिमा. श्री कृष्ण का हृदय कुमुद कुसुम. तो कुमुद और कमल में क्या फर्क है? कमल खिलता है किसमें? सूर्य रोशनी में. और कुमुद खिलता है चंद्र की रोशनी में. कमल, the lotus springs in the moonlight, but kumud flower blossoms in moonshine. तो श्री कृष्ण का हृदय कुमुद कुसुम, श्री राधा सुधांशु चंद्र किरण. सीधे इन्फ्लुएंस ऑफ राधा रानी और कृष्ण. श्री कृष्ण का मानस हृदय है राजहंस. श्री कृष्ण का मानस हृदय है राजहंस. और श्री राधा है मानस सरसी. सरसी मतलब कोई तालाब कुंड, जहाँ पे राधा रानी की मानस सरसी की तरफ ही श्री कृष्ण राजहंस विचरण करते हैं. So although Krishna, who is the all enchanter, one who enchants, attracts everybody, but he himself is enchanted by Radharani. That is the thing described. श्री कृष्ण त्रिशित चातक. चातक पक्षी हमेशा बादलों के जल को ही ढूंढता है, एकांतिक, और कहीं भटकता नहीं. सो कृष्ण त्रिशित चातक, श्री राधा नवघन वारी धारा. देखो रिवर्स कर दिया. श्री राधा नवघन मतलब नए बादलों की, वारी मतलब जलधारा. क्या बात है. श्री कृष्ण रूपी मंजुल तमाल. मंजुल है सुंदर. श्री कृष्ण रूपी मंजुल तमाल पर श्री राधा स्वर्ण लतिका. एक के ऊपर एक अंकित है ना. कृष्ण रूपी मंजुल तमाल पर श्री राधा स्वर्ण लतिका जैसे अंकित है. तो फोकस किसका होता है? ग्लैमर किसका होता है? प्राइम अट्रैक्शन जो घटता है, जिसका प्रभाव ऊपर होता है, वही होता है. गोविंद नव जलधर में श्री राधा अद्भुत स्थूल सुधामणि. यदि भगवान श्री कृष्ण a new fresh rain cloud, नव जलधर में, तो राधा रानी is like अद्भुत, most astonishing, wonderful, stable lightning. Lightning is never stable. It just moves, fickling, fickle. But Radha is like steady or fixed lightning in the newly or fresh rain cloud. Krishna. Nidag, the summer time. See, this is so wonderful. In all seasons, how Krishna is enchanted by Radharani. In the summer time, ग्रीष्म के प्रखर ताप में श्री राधा है श्याम अंग पर चंदन कर्पूर और चंद्रिका. Can you imagine? In the summer time, what is Radharani to Krishna? On his limbs, Radharani is like
sandalwood paste, कर्पूर में camphor, and like the moonshine. शीत ऋतु में, in winter time, शीत ऋतु में सुंदर पीत वस्त्र. Radharani is like a पीत वस्त्र. It's golden clothes or dresses. Radharani is golden. Na? So in winter time, they need a lot of closeness. Na? So Radharani becomes like a golden clothes on Shyam Sundar in the winter time. वसंत में श्याम अंग रूपी वृक्ष पर मधुश्री मधुराकृति. Vasant means springtime. So Krishna's body or his limbs are compared to a tree. Angarup tree par madhushri madhurakriti. Madhushri, madhu means honey. Shri means beauty. Madhurakriti. Radharani, you know. So in springtime, you know, it's like so much joyful atmosphere around. You know? So the tree also blossoms. So Radharani is that blossoming of the tree. Krishna's body is the tree, then Radharani is the beauty and the sweetness enhanced. So in springtime, the tree blossoms. You know, so many juices come out of the tree and the flowers and everything. So that is the thing. वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण है जलधार, श्री राधा मंजू मल्लार. This is so beautiful. In the rainy season, Krishna is like the rain cloud. Correct? But in order for red cloud or rain cloud to sprinkle or become rain, something else is also required. So Radharani is Manju Mallar Raga. In music, there is one raga which is called Manju or Mallar Raga. So in Mallar Raga, when it is sung, then the rain clouds starts pouring rain. So this is the influence of Radharani over Krishna. Sharad means in autumn. Shri Krishna Rasikendra Chudamani, Shri Radha Sakshat Rasa Shri. In autumn season, Sharaditu, the Ras Lila took place. So Krishna is the connoisseur of all the rasas. Mas one who relishes, is Rasika Shekhar. And Radharani is the very essence, Rasasri, or very beauty. You know, she's the very beauty or the pivot of Rasa dance or Rasa Lila. Krishna finds total fulfillment in the autumn season, being connoisseur of Rasikendra, Rasika Shekhar, Radha Saksha Rasasri. Radha is the beauty or the very central pivot of Rasalila. Hemant means what do you call Hemant mein? Hemant को कौन सी ऋतु कहेंगे? ठंडी के बाद की, जनवरी फरवरी. इन हेमंत में श्री राधा है स्मर समर, कंदर्प युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले ब्रज युवराज के मानस तुरग मन रूपी घोड़े का अपहरण करने वाली जय श्री मूर्ति धारिणी. So in all seasons in Braj, how Radharani totally subjugates or controls Krishna, this is so amazing. You know, although Krishna desires to become victorious, Vijay ki abhilasha rakhne wale Braj Yuvraj ke manas turag. So Krishna's mind is always obsessed to become victorious over Radharani or the gopis, mainly Radharani. But Radharani is so amazing
Radharani, she just steals the Manurupi Ghoda, the horse of Krishna's mind. The horse of Krishna's mind wants to become victorious by his vigor and everything. But Radharani, by his Sri Murti Dharini, by the manifestation of her most beautiful countenance or, appearance, Krishna's Manurupi Ghoda, the horse of Krishna's mind becomes अपहरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Kidnap. So Radharani's beauty kidnaps Krishna's horse like mind who wants to become victorious. So instead of become victorious, he becomes captured. Correct? अपहरण मतलब है? Abduction, yeah. So he loses. तो इस विश्व में जो सुंदर है, जो मधुर है, जो प्रेम से संबंध है, प्राणों से जुड़ा है, जो कामना की वस्तु है, श्रीपाद ने उसी का दृष्टांत लेकर श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रीति सौहार्द एवं सौंदर्य माधुर्य को समझाने की चेष्टा की है. Comparing with the rain cloud or lotus or the lily, moon, all these beautiful things. So the beauty and the effect of one over the other is described through the things which are seen very beautiful in this world, sweet, and how they are related. तो जो कामना की वस्तु है, श्रीपाद ने उसी का दृष्टांत लेकर श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रीति सौहार्द एवं सौंदर्य माधुर्य को समझाने की चेष्टा की है. सभी स्मृतियों में श्रेष्ठ है युगल विलास स्मृति. What is the best thing to be remembered? The best thing is to be remembered or to become obsessively remembering is Yugal Vilasa Smriti. To contemplate, to meditate, to hear, to describe, relish the conjugal affairs between Radha and Krishna. साधक को इसी रस में डूबना होगा. साधक has to drown in the mellow of this affair, conjugal affair of Sri Radha Krishna. Yugala Vilasa Smriti Sar, the essence or the ultimate thing to be remembered. Smriti Sar, Sar means essence. We remember many things, correct? But all this remembering, the essence of all remembrance, we want to remember only things which are useful, which are attractive or something like that. But the essence of all remembrance is the conjugal affair of Srimati, of the divine couple. लीला विशेष में सखियों की उपस्थिति में युगल को संकोच होता है, इसलिए सखियां भी मंजरियों को ही निगूढ़ सेवा का आदेश देती है. उस युगल विलास में, in that conjugal affairs, how both Radha and Krishna both are, the senses of both are obsessed to get the objects of the senses. What are the objects? Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha. Shabda means the words, Sparsh means the touch, Rupa means form, seeing the form with the eyes. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, tasting the sweetness of each other's, and Gandha, smelling the sweet and very intoxicating fragrance of each other's, and to contemplate about that is the highest contemplation. So invigorating and so
elevating our consciousness, that we would we would feel the need, or we will not feel any necessity of anything else. So लीला विशेष में सखियों की उपस्थिति में युगल को संकोच होता है, इसीलिए सखियां भी मंजरियों को ही निगूढ़ सेवा का आदेश देती है। ललिता कवे मोरे विजन देव बीजब मारुत मंदे श्रम जल सकल मेटब दुहु कलेवर हेरब परमानंदे, है ना। सो हाउ किंकरी को जो कॉन्फिडेंशियल सेवा पिछले राधा रानी का उस विलास के अंतर्गत जो प्रिय हार है वो टूट गया, तो उसको कूद कर वापस पहनाना की सेवा राधा रानी ने अपनी अंतरंग किंकरी को दी है। स्वामिनी के स्नेह और लाड़ प्यार से दासी का हृदय भरा है। स्नेह पात्र किंकरी को आदेश दे रही, क्या आदेश दे रही कि शीघ्र मुक्ता माला गूंथ कर पहनाने के लिए। अब टाइम तो बहुत कम रह गया, हड़बड़ाहट में है, वो छोटा काम है क्या, गूंथ कर पिरोना और वापस। तुलसी ने राधा रानी के चरणों में बैठकर क्षिप्त हाथों से, बड़े तीव्र गति, जल्दी जल्दी हाथ चला, मुक्ता माला गूंथ कर पहना दी स्वामिनी को। स्वामिनी परम संतुष्ट है, शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। इतनी फुर्ती से कैसे, हाउ यू गूंथने को क्या बोलते हैं, स्ट्रंग टुगेदर, हाउ यू स्ट्रंग टुगेदर सो फास्ट। In the very question is hidden or manifest the pleasure and satisfaction of Radharani, correct? How you did it so fast? So Sri Radharani is very enchanted. स्वामिनी का संतोष देखकर तुलसी के आनंद की सीमा नहीं। सेव्य सुखी हो तभी तो समझे कि सेवा सार्थक हुई, मेरी सेवा उनके लिए सुख कर हुई है कि नहीं। यदि इस बात की सूचना वे स्वयं नहीं देते तो मैं क्या भजन कर रहा हूँ, फिर मेरे भजन का क्या प्रयोजन। उसी प्रकार हमें भी हमारी लालसा, उत्कंठा, व्यग्रता, प्रार्थना यदि पुष्ट मतलब प्रबल हो, एकांतिक हो, है ना, तो राधा रानी से कुछ हम भी उनकी संतुष्टि की सूचना पा सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नहीं दे उस चीज की सूचना की हमारी सेवा, हमारी प्रार्थना से वो प्रसन्न है, तो फिर तब तक हमारा भजन अधूरा ही होना। भले भले वो इंडिकेट, वो सूचना हमें भले स्वप्न में मिले, स्फुरण में मिले, स्फुरण में मिले, स्मरण में मिले, स्वप्न में मिले तो ही सही, थोड़ी सी अनुभूति तो चाहिए ही। यही साधक जीवन का भरोसा आधार है। श्रीपाद का स्फुरण का आस्वादन अत्यंत विचित्र है, साक्षात्कार जैसा ही निविड़ अनुभव, स्फूर्ति के विराम में वैसा ही हाहाकार और प्रार्थना। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में हमने यही, अब स्फूर्ति का तो तांता लगा हुआ है, स्फूर्ति में विराम आ गया, फिर वो हाहाकार में पुनः राधा रानी की कृपा से पुनः उसी अंतर राज्य में स्फूर्ति को प्राप्त करके आज के अनुशीलन में राधा रानी की जो इतनी अंतरंग और अभीष्ट क्रिटिकल सेवा की है, जो जितनी क्रिटिकल सेवा करेगा उतना ही अंतरंग हो जाएगा। सेवा दूसरी जनरल भी होती है, लेकिन जो क्रिटिकल सेवा जिसमें इतना एकांतिक विश्वास के उसको दे दो, वो काम हो जाएगा ना। इस प्रकार की अंतरंग है किंकरी तुलसी मंजरी। तब आज के स्फुरण में उस अंतरंग सेवा को पूर्ण करके राधा रानी का जो इतना संतोष संपादित किया है, उसका पुरस्कार होता है। तो पुरस्कार के रूप में चर्वित तांबुल प्रदान, इस प्रकार स्वामी ने किंकरी को अपना चर्वित तांबुल उसके मुख में प्रदान करती है। इसका अद्भुत निरूपण होगा। श्लोक संख्या 93। स्वमुखान मन मुखे देवी कदा तांबूल चर्वितम स्नेहात् सर्वदिशो वीक्ष्य समये त्वं प्रदास्यसि। हे देवी श्री राधिके, सर्वदिशो वीक्ष्य समये, चाहो देख के क्यों, कोई देख तो नहीं लेवे, नहीं तो उपवास होगा कि अच्छा। तुम चारों ओर देखकर, सर्वदिशो वीक्ष्य समये त्वं प्रदास्यसि, सब देखकर
टाइम देख के, अभी कोई नहीं देख रहा है, किसी की नजर पे नहीं है ये बात। हे देवी श्री राधिके, तुम चारों ओर देखकर स्नेह से भरकर अपने मुख से निकाल कर मेरे मुख में चर्बित तांबुल कब दोगी? स्वमुखान मन मुखे, अपने मुख से मेरे मुख में। कितना अद्भुत है! स्वमुखान मेरे मुख में, अपने मुख से मेरे मुख में देवी कदा तांबुल चर्वितम, आपके द्वारा चर्वित तांबुल मेरे मुख में कब दोगी? कितना अद्भुत सौभाग्य! स्वामी ने अपना चर्वित तांबुल अपने मुख से निकाल कर हमें कभी तो अवश्य देगी ना। इसकी लालसा हमारी भी बढ़ती जाए। इस लालसा को ही व्यक्त आज के श्लोक में कर रहे हैं रघुनाथ जी। जैसे उन्हें अप्राप्त है, उन्हें तो प्राप्त ही है बार बार, लेकिन साधक आवेश में जैसे उसी की स्प्रिया को व्यक्त कर रही है। क्योंकि इसके पहले श्लोक में जो सेवा अंतरंग, बहुत अंतरंग क्रिटिकल सेवा संपादित की, उसका उचित पुरस्कार तो होना चाहिए ना। उस पुरस्कार के रूप में उस तांबुल की प्रिया तांबुल दिया, शायद स्फूर्ति में विराम आ गया तो हाहाकार में उसी सौभाग्य को, उसी उपहार से उपकृत होने की लालसा व्यक्त कर रही है। वाह वाह! चर्वित तांबुल प्रदान, क्या स्फूर्ति, क्या स्फूर्ति का विराम! दोनों ही स्तुतियों में श्रीपाद के हृदय में श्री राधा के सरस दास्य की प्राप्ति की अटूट वासना अबाध रूप से विद्यमान है हर अवस्था में। साक्षात राधा रानी की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब स्फूर्ति आवेश में ही उसी की उत्कंठा, राधा रानी के कंकर्ज की प्राप्ति, राधा रानी के सरस दास्य की प्राप्ति की अटूट वासना, अखंड वासना रूप से विद्यमान है। हमारी भी वो वासना अबाध बन जाए, अटूट बन जाए, तो फिर कब तक राधा रानी इंतजार करवाएगी? वो तो जानती है, सब देखती है, सब सुनती है, सब समझती है। शी नोज आवर इंटेंट, है ना, व्हाट वी आर अप टू। हम कितने, हमारे इंटेंशन में, हमारे एटीट्यूड में एकांतिक है, तो नेचुरली वो प्राप्त होगी ही। तो उस प्रकार की ही अटूट वासना को हमें का संचय करना अपने हृदय में। हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हमें राधा रानी के चरणों की बाल्यदासी बनाना चाहते हैं, बनाकर जो सौभाग्य, जो माधुर्य आस्वादन कराना चाहते हैं, उसके कारण ही महाप्रभु की महावदन्यता कहलाई। इसलिए हम जो गौड़ीय वैष्णव जो कहलाते हैं, गौड़ीय वैष्णव साधक को भी हृदय में राधा राशि की, राधा रानी की दासी होने की वासना जागृत रखकर ही भजन करना होगा। अथवा हमारा भजन करते हुए हम साधारण रह जाएंगे। ये जो रागानुगा भक्ति और मंजरी भाव के उपासना है, ये साधारण ही नहीं है। सो वी कैन नॉट गेट बाय, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं अटक जाएंगे। लोगों की, आसपास के लोगों की दृष्टि में साधक कहलाएंगे, भजन करते इत्यादि, हमारा प्रवेश ही नहीं हुआ उसमें। उसमें एकांत प्रवेश का एकमात्र साधन है, मैं राधा रानी की दासी हूं, या दासी होने की वासना जागृत रखकर ही भजन करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन ऑर्डिनरी नाउ एनी मोर। जब साक्षात महाप्रभु की इच्छा और मनोविष्ट को हमने जान लिया है, तो उसके अनुरूप हमें अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। सत्संग में तो हमें ढले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खुद का आग्रह होगा तो दो डबल संपुट हो जाएगा। मैं भी वही चाहता हूँ जो मुझे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं मुझे दिया जा रहा है सब कर रहा ही करना है, लेकिन मैं और कुछ चाहूँ। बड़े मिसमैच है। अमृत दिया जा रहा है, मैं विष की तरफ जाऊं तो फिर अमृत भी क्या करेगा, हमें बचा पाएगा? तो फिर अमृत का हम श्रवण कर रहे हैं, तो फिर अमृत ही धारण करने की एकमात्र वासना रह जाए ना। तो अपने हृदय में राधा रानी की दासी हम बनने की वासना जागृत रखकर ही हमें भजन करना होगा। यह वासना ही हमारी वास्तविक रियलिटी चेक है। यह वासना ही हमारी प्रकृति स्वभाव की परिचायक है। व्हाट वी आर अप टू, इफ यू वांट टू गेज व्हाट वी आर अप टू, अपेरेंटली लोग हमें कुछ भी कहे, कैसा भी माने, क्या भी करे, ठीक है, हमारे हृदय की वासना ही हमारा
हमारी अंतर की वासना ही हमारा परिचय है। यदि वासना राधा रानी की दासी बनने की है, तुम राधा रानी की दासी ही हैं। यदि वासना राधा रानी की दासी की नहीं है, तब नहीं है, फिर हम और कुछ बन जाएंगे। केवल एक कहने के लिए नहीं है, इस वासना को इस वासना को पुष्ट करना है। वासना ही हमारी प्रकृति की परिचायक होगी। हृदय में जैसी इच्छा की परिकल्पना होती है हमारी, कार्य क्षेत्र में उसी इच्छा की स्फूर्ति के अनुसार क्रिया का परिणाम होता है ना। संसार में भी देखा जाता है, हम हृदय में जो वासना, जो संकल्प, जो मनोयोग है ना, जो उत्कंठा, तीव्र भाव से हमें ये चाहिए, उसी के अनुरूप हम जो क्रिया करते हैं तो परिणाम आता है ना। वासना ही नहीं हो प्रबल, उत्कंठा, आकांक्षा, फोकस, टारगेट न हो आकर्षक, तो उसके प्रति धावित भी वह ढीले ढीले होंगे। यदि उत्कट आकांक्षा है किसी चीज को पाने की, किसी चीज को उपलब्ध करने की, तो उसके अनुरूप ही हमारी क्रिया का परिणाम होता है। हमारी आकृति, आकृति मतलब हमारा जो हाव भाव है, प्रकृति में अंतर का स्वभाव, आकृति प्रकृति उसी के अनुरूप बदलती रहती है। हम अंदर क्या सोच रहे हैं, उसके अनुरूप ही बाहर हमारी आकृति बन जाती है। पहले अंतर में उसका ढांचा, उसकी ब्लूप्रिंट अंतर में बनती है प्रकृति, उसी के अनुरूप हमारी आकृति, बाहर का जो हमारा डिस्पोजिशन है, हाव भाव, गतिविधि है, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, सब कुछ अंतर में जो भाव पुष्ट होता है, अंतर में जो प्रकृति बनती है वासना के अनुरूप, उसके अनुरूप ही बाहर हमारी आकृति प्रकट होती है। साधक अपने अंतःकरण में जैसी वासना का पोषण करता है, कितनी अद्भुत बात कही है। साधक अपने अंतःकरण में जैसी वासना का पोषण करता है, योग माया भी उसके हृदय की छवि तद अनुरूप प्रत्यंकित कर देती है। प्रत्यंकित मतलब अंकित, मतलब इंस्क्राइब। उसी पे जो वासना अंतर में पुष्ट होती है, राधा की किंकरी होने की, है ना, तो योग माया भी उसके हृदय की छवि तद अनुरूप, हृदय में वही आमी राधा, ये प्राइड है ना, प्रत्यंकित हो जाता है। अंतर में वो राधा रानी की किंकरी ही अपने आप को मानने का गुमान करता है। अंतर में हो, बाहर स्वांग नहीं, क्योंकि जो बाहर जो दिख रहा है ये पंच भौतिक देह है, ये तो नश्वर है, ये तो यहाँ का, इस देह से हम राधा रानी का संग सेवा नहीं कर सकते, लेकिन राधा रानी की किंकरी होने की भावना को पुष्ट कर सकते इस वर्तमान देह में। तो साधक अपने अंतःकरण में जैसी वासना का पोषण करता है, योग माया भी उसके हृदय की छवि तद अनुरूप प्रत्यंकित कर देती है। इसलिए साधक को हृदय में राधा दास्य प्राप्त करने की वासना का सतत पोषण करके ही ब्रज लीला का, या जो वर्तमान जो हम अनुशीलन कर रहे हैं, श्रवण स्मरण आदि करना होता है। इस वर्तमान सत्संग में जो पीरसा जा रहा है, उस पीरसन को पूरा पचाने के लिए, पूरा अंतर में धारण करने के लिए हमें राधा रानी की दासी या राधा रानी के दासत्व को प्राप्त करने की वासना का सतत पोषण करना है, सतत उस भाव को पोषण करना है। तो फिर हम अग्रसर हो जाएंगे। ये सत्संग के प्रभाव से ही हमारी जो भावना है वो पुष्ट होगी, और पुष्ट हुई भावना ही हमें अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेगी। साधने भावी वे जहां, सिद्ध देह पाइबे तहां। है ना। तो कितना एक्यूट, कॉन्सेंट्रेट, फोकस साधक का ध्यान होना चाहिए। ये सर्व नैर अपेक्षेण राधा दास्यच्छव परम संकीर्तयन्ति तन्नाम तादृशे प्रियतामया। हमारा जो संकीर्तन है वो भी अल्टीमेट
उसकी परम सफलता। संकीर्तन साधन बड़ा पावरफुल है। संकीर्तन में क्या होता है, जिसके नाम का अनुशीलन करने से, जिसके नाम की आवृत्ति बार बार करने से, कोई किसी को पुकारे तो अच्छा लगता है कि नहीं। किसी की चर्चा हो रही हो हमारे बारे में, सपोज कोई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या और भी कटाक्ष या मजाक करे, हमें मालूम नहीं कि वो प्रशंसा करेंगे निंदा कर रहे हैं, फिर भी मालूम तो पड़ गया हमारे बारे में ही कर रहे हैं। लेकिन जब कोई नाम लेके बुलाएगा तब हम हटा देंगे, अरे अच्छा मेरे बारे में चर्चा, और फिर मेरी जरूरत पड़ गई तो मैं कोई पुकार रहा है मुझे। तो उसी प्रकार ही राधा रानी को जिस प्रकार पुकारा जा रहा है ना यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, तो राधा रानी तो जानती है चित्तवृत्ति किंकरी की। तो फिर जब पुकारे हैं नाम लेकर, तब राधा ने एकदम एकदम आकृष्ट होकर अभिष्ट की पूर्ति प्रदान करती है। सभी की वांछातीत, सभी को वांछातीत फल देकर फल प्रदान करती है। तो जो लोग सभी प्रकार के साध्य साधनों की अपेक्षा से रहित हो, सभी प्रकार के अन्य साधन साध्य साधनों की अपेक्षा से, न वैकुंठ जाना है, न द्वारका जाना है, न मीराबाई बनना है, न कोई गोपी बनना है, हमें तो राधा रानी के कैंकर्य को पाना है। तो जो लोग सभी प्रकार के साध्य साधनों की अपेक्षा से रहित हो, केवल श्री राधा रानी के दास्य की कामना करते हैं, अर्थात मैं श्री राधा जी की, मैं श्री राधिका की दासी हूँ, यही अभिमान रखते हैं और उसकी प्राप्ति को ही अपनी सर्व सिद्धि समझते हैं, उन लोगों का वांछातीत फल स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। एकांतिक आकांक्षा ही स्वामिनी को भाती है। उनके उस सर्व असाधारण परम महाफल की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार का सर्व असाधारण परम महासाधन भी हो। साधन क्या है? नाम संकीर्तन। प्रेम भाव से रास रसिक का नाम संकीर्तन, प्रेम भाव से रास रसिक का नाम संकीर्तन। श्री नाम संकीर्तन प्रधान भागवत धर्म की साधना बड़ी ही रसमय और परमानंदमय है ना। संसार में भी देखा जाता है, यही देखा जाता है, किसी का नाम लिया मतलब व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। लोगों के बीच में किसी के नाम को यदि प्रकाशित कर दिया तो ऐसा ही जैसे ओ मुझे इतना महत्व दिया है, इतना विशेष बताया ना। सभी के बीच में कोई अपने नाम को आदर पूर्वक लेके बुलाए कि आओ, जैसे इन सबके बीच में मेरी क्या जरूरत, मैं इतने फोकस में कैसे आ गया। तो जब नाम लेते हैं भगवान का, तो भगवान फिर कहते हैं हाँ हाँ हाँ, इसकी चेतना की फोकस में मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम ले रहा है। यदि कोई किसी गुणवान व्यक्ति के रूप गुण आदि की प्रशंसा चर्चा करता है सपोज, तो वह गुणी व्यक्ति प्रसन्न होता है ना कि मेरी चर्चा हो रही है। वो शांत रहता है कि क्या क्या और सुनूं, ये थोड़ी क्या हो जाके अच्छा करो मेरी और प्रशंसा। सुनता है दूर से ही, किंतु तुरंत उत्तर नहीं देता। कब तक नहीं देता उत्तर? जब तक कोई उसे नाम लेके पुकारे नहीं, आओ सब आओ। अभी तक उनकी चर्चा हो रही थी, फिर मालूम पड़ा कि ये तो आसपास ही होंगे, उनको पुकारे भाई आप इधर ही है कि आ जाओ। पर जब उसे नाम लेकर पुकारते हैं तो वह दूर होते हुए भी, और यह जाने बिना कि उसकी खिंचातानी हो रही है, प्रशंसा हो रही है? आ जाता है, हम तुरंत उत्तर देता है कि हाँ मैं यही हूं। तो इसी प्रकार यह नाम संकीर्तन प्रदीप्त स्वाभाविक मधुर रस का भजन ही नाम संकीर्तन प्रधान या नाम संकीर्तन प्रदीप्त, नाम संकीर्तन से प्रकाशित, नाम संकीर्तन से उज्ज्वलित प्रज्वलित संपुष्ट। नाम संकीर्तन से कोई भी फंक्शन उत्सव महोत्सव में चार चांद लग जाते हैं ना, उस प्रकार ये नाम संकीर्तन प्रदीप्त स्वाभाविक मधुर रस का भजन ही श्रीमद महाप्रभु के दिए साध्य अवधि या साध्य शिरोमणि राधा दास्यम को की प्राप्ति का परम उपाय है। नाम संकीर्तन प्रदीप्त मतलब नाम संकीर्तन से युक्त, नाम संकीर्तन से प्रस्फुटित, नाम संकीर्तन से झंकृत, स्वाभाविक
मधुर रस का भजन ही श्रीमन महाप्रभु के लिए साध्य अवधि या साध्य शिरोमणि राधा दास्य की प्राप्ति का परम उपाय है। महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की महिमा के अंतर्गत स्वरूप रामानंद राय को भी इसी बात का जिक्र किया कि हर्षे प्रभु कहे न सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। कलयुग में नाम संकीर्तन ही परम उपाय है किसी भी अभिष्ट की पूर्ति के लिए। तो तुलसी ने मन प्राण को संतुष्ट करने वाली सेवा की। राधा रानी का टूटा हुआ जो हार है उसको गुंफित कर दिया, गूंथ कर वापस राधा रानी को तुरंत पहना दिया। तो राधा रानी सहज ही अपनी किंकरी को पुरस्कृत करना चाहती है, उसे पुरस्कार देना होगा। ललिता आदि आकर देख लेती कि टूट गया हाथ, इतनी हरकतें करती हो तुम, इतना स्ट्रॉन्गली गुथा हुआ हार भी टूट कैसे गया। अब राधा रानी तो अपने अनंत भाव वैचित्र्य में श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे नाच नचाती है, खुद भी नाचती है, हार वार क्या कुछ भी टूट सकता है। लेकिन सखिया सोचेगी अरे इतनी गुटुर मस्ती, इतनी मतलब उछल कूद क्या की कि तुम्हारा हार को भी तुम नहीं संभाल सकी है ना। तो सखिया तो कटाक्ष करेगी ही। ललिता आदि आकर देख लेती तो मैं लाज से मर जाती, राधा नहीं करती है। ये सोचकर स्वामी जी ने चारों ओर देखकर तुलसी द्वारा हार पहनाने के साथ ही, इस तुलसी हाथ बनाए उसी समय तुरंत पुरस्कार अपने मुख को लाकर किंकरी के मुख में वो अपना चरित तांबुल दे दिया। शायद देखे कोई देख तो नहीं लेवे, ये सोच के स्वामी ने चारों ओर देखकर तुलसी द्वारा हार पहनाने के साथ ही गुप्त रूप से अपने मुख का चर्वित तांबुल तुलसी के मुख में रख दिया। प्रियजन को प्रिय सेवा का यथायोग्य पुरस्कार ही दिया। प्रियजन को प्रिय सेवा के यथा, कितनी क्रिटिकल अंतरंग सेवा, उसके यथायोग्य पुरस्कार ही दिया। प्रीतम श्याम सुंदर ने विहार के समय इसमें, और वही किंकरी को अभिष्ट है। भले ही स्वामिनी को श्याम सुंदर का चरित तांबुल अभिष्ट है, तो जो स्वामिनी को परम अभिष्ट जरूरी नहीं कि वो किंकरी को परम अभिष्ट हो। इसमें अपनी भी पसंद हो सकती है ना, नहीं, लेकिन जो स्वामिनी को परम प्रिय है वो तो स्वामिनी के लिए आस्वाद्य है। किंकरी के लिए आस्वाद्य परमास्त्र क्या है? स्वामिनी द्वारा चर्वित तांबुल। प्रीतम श्याम सुंदर ने विहार के समय जो चर्वित तांबुल स्वामिनी के मुख में रखा था, उसका क्या आस्वादन है स्वामिनी ही भली भांति जानती है। कृष्ण जे खाए तांबुल, कहे तार नाही मूल, ताहे आर दंभ परिपाटी। कृष्ण जिस पान को चर्वित करता है, कहे कहे तार नाही मूल, यहाँ पर उसका कोई मैच नहीं, उसका कोई सामी नहीं है। इस प्रकार का उसका प्राइड भी है। ताहे आर दंभ परिपाटी, उसकी ऐसी परिपाटी है, वो तांबुल है, वो भी इतना दंभ करता है कि मैं कृष्ण द्वारा चर्वित हुआ हूं, जिसकी आकांक्षा करती है गोपियां। तो फिर वो चर्वित कृष्ण के द्वारा चर्वित तांबुल भगवान जब गोपियों के मुख में या राधा रानी के मुख में देते हैं, तो गोपियों के मुख या राधा रानी के मुख क्या बन जाता है? तार जेबा उदगार तारे कहे अमृतसर, गोपीर मुख करे आल बाटी। आल बाटी मतलब पीकदान होता है। गोपियों के मुख को वो भगवान द्वारा चर्वित तांबुल पीकदान जैसे उनमें डाल देते हैं। तांबुल में अधरामृत का आस्वादन अवश्य ही परम दुर्लभ एक कृष्ण अधरामृत। किसके लिए परम दुर्लभ या परम वांछनीय? दुर्लभ करने का मतलब हाउ 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 मच यू नीड इट। परम दुर्लभ एक कृष्ण अधरामृत, नेचुरली गोपिया और राधा रानी को ही वो प्राप्त है, और किसी को प्राप्त नहीं करने से दुर्लभ है। लेकिन वो अति दुर्लभ जो कृष्ण अधरामृत है, वो मंजरियों के लिए वांछनीय नहीं है। भले होगा दुर्लभ, हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? राधा रानी द्वारा स्वामिनी द्वारा चर्वित तांबुल। ताहा जई पाए तारे सफल जीवन, परम दुर्लभ है कृष्ण अधरामृत, ताहा जई पाए तार सफल जीवन। आपात दृष्टि से जो कृष्ण के आकर्षण में कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनके लिए तो कृष्ण अधरामृत जो परम दुर्लभ है,
उसे कोई पा जाए तो अपने जीवन को सफल माने। लेकिन इस अधरामित की सर्वाधिक आस्वादन अनुभूति कहाँ है? इस कृष्ण अधरामित को सर्वाधिक आस्वादन कौन करती है? स्वामिनी। श्री कृष्ण के केवल वो अधरामित का आस्वादन नहीं, सभी इंद्रियों के विषय कृष्ण से ही संबंधित है। कृष्ण के ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का माधुर्य अनुभव करने के लिए ही प्रेम की आवश्यकता है। और उस प्रेम से लबालब प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त है राधा रानी। इसे राधा रानी भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पूर्णतम अधिकतम आस्वादन करती है, समर्थ है। गोपियों का भी प्रेम महाभाव संपन्न, लेकिन गोपियों का प्रेम असीम नहीं। असीम क्योंकि राधा रानी का विशेषण है, जितना गोपियों का है उससे भी कहीं अधिक, और कितना अधिक उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए राधा रानी का प्रेम जो है वो असीम है। बाकी सब गोपियों का प्रेम सीमित है, पूर्ण है, उनकी तरफ से पूर्ण है। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने की? जितनी उनकी कैपेसिटी है। लेकिन राधा रानी की कैपेसिटी असीम है। कृष्ण माधुर्य से प्रेम के स्वाद्यम। श्री कृष्ण का माधुर्य एकमात्र प्रेम द्वारा ही आस्वादित होता है। जो प्रेम को प्राप्त नहीं है वो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते। किंतु सभी प्रेमी समान रूप से श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करते हुए सो नहीं। अपने प्रेम के तारतम्य, प्रेम की अधिकता कम अधिकता के अनुसार भी भगवान के माधुर्य का कम अधिक आस्वादन करते हैं। आमार माधुर्य नित्य नव नव होय। भगवान कहते हैं मेरा माधुर्य हमेशा नूतन नूतन प्रकट या प्रकाशित होता है। स्वस प्रेम अनुरूप भक्त आस्वाद है। मेरा माधुर्य तो नित्य नव नव करवटे लेता है, नव नव उसका प्रकाश है। लेकिन अपने अपने प्रेम के अनुरूप ही भक्त लोग उसका आस्वादन करते हैं। वास्तव में टेक्निकल वस्तु आई है कि वस्तु तो अद्भुत है, कृष्ण का अधरामित वस्तु तो कैसी है? अद्भुत है। अब उसका आस्वादन करने की कैपेसिटी जिसकी जितनी है उतना ही आस्वादन कर पाएगा ना। इसके लिए एक बात बताई है कि वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु ग्रहण का कारण नहीं। वस्तु तो उपलब्ध, वही वस्तु उपलब्ध है, किसी को भी वस्तु तो वही उपलब्ध है, गोपियों को भी वही उपलब्ध है, राधा रानी को भी वो उपलब्ध है। राधा रानी जिस स्तर पर उस कृष्ण अधरामित का आस्वादन करती है वो बहुत विशेष है। इसलिए कहे वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु ग्रहण का कारण नहीं, इंद्रिय शक्ति ही, जिसकी जितनी इंद्रिय शक्ति है उतना ही वस्तु ग्रहण का कारण है। जिसकी जितनी इंद्रिय शक्ति अधिक उतना ही वो वस्तु का आस्वादन कर सकता है। जैसे अद्भुत पकवान, रबड़ी, रसमलाई या जो भी कलाकंद या जो भी है ना, जिसकी जो रुचि पड़ी हो, लेकिन जिसकी कैपेसिटी एक गुलाब जामुन जितनी है तो वो तो अधिक नहीं आस्वादन कर सके। लेकिन जिसकी इंद्रिय शक्ति अधिक है पचाने की, वो तो 2 किलो मिष्ठान एकदम आस्वादन कर लेगा। वस्तु तो वही है, लेकिन जिसकी जितनी इंद्रिय शक्ति उसके अनुरूप ही वस्तु ग्रहण का कारण बनता है। फिर इंद्रिय शक्ति है या नहीं, किसी की इंद्रिय शक्ति है या नहीं, यह भी वस्तु ग्रहण द्वारा ही समझा जाता है। मतलब कितनी वस्तु ग्रहण कर सकता है। दिखने में दो व्यक्ति हो, एक मोटा दादा दिखे, कोई पतला दिखे, तो ऐसा लगता है भाई शक्ति तो है। ऐसा कैसे भाई, जो बड़ा व्यक्ति है उसकी शक्ति खूब होगी, लेकिन बहुत बार जो पतला दिखता है वो भी बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। मोटे व्यक्ति की खाने की शक्ति इतनी नहीं हो, पतले व्यक्ति की बहुत बार अधिक देखी जाती है। इसलिए बोलते हैं कि इंद्रिय शक्ति है या नहीं किसी की, यह भी वो कितनी वस्तु ग्रहण करता है, यह भी वस्तु ग्रहण द्वारा ही समझा जाता है ना। आपात तो ऐसा कह सकते भाई ये व्यक्ति बहुत पहलवान जैसा दिख रहा है तो ये खूब इसकी बहुत शक्ति होगी खाने की या कुछ किसी भी चीज को लेकर। और कोई पतला है तो वास्तव में लेकिन वो कितना ग्रहण करता है उससे ही निर्णय होगा कि उसकी शक्ति कितनी है। उसी प्रकार भगवत माधुर्य आंखों के आगे रहने से ही
उसे सभी ग्रहण कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार भगवत माधुर्य आंखों के आगे रहने से ही मंदिर के दर्शन तो सभी करने जाते हैं, भगवान तो विग्रह में या जहां विराजमान है, तो भगवत माधुर्य आंखों के आगे रहने से ही उसे सभी ग्रहण कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता। प्रेम ही भगवत माधुर्य को ग्रहण करने का कारण है। भगवत माधुर्य प्रेम बिना और किसी भी प्रकार आस्वादन नहीं किया जा सकता। फिर प्रेम के तारतम्य, प्रेम के कम अधिक होने से, प्रेम के अंतर के अनुसार माधुर्य के आस्वादन में भी तारतम्य रहता है। जिसका जितना प्रेम उसके द्वारा उतना ही उसी स्तर पर माधुर्य का आस्वादन। विषय वस्तु तो भगवान एक ही है, लेकिन अपनी कैपेसिटी, ग्रहण करने की शक्ति, वो प्रेम के अनुरूप ही वो उस माधुर्य का आस्वादन कर सकेगा। प्रेम है या नहीं, प्रेम का परिणाम क्या है, यह भी माधुर्य के आस्वादन द्वारा ही जाना जाता है। जो जितना माधुर्य आस्वादन करता है उसका उतना अधिक प्रेम है। कि प्रेम के आधार पर ही, प्रेम के माध्यम से ही वो भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर सकता है। इसलिए जो जिस स्तर पर माधुर्य का आस्वादन करता है उससे उसके द्वारा उसकी उस उच्च स्तर के प्रेम का निर्धारण होता है। इसलिए राधा रानी कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करके जो अभिभूत अवस्था को प्राप्त करती है, यही प्रकाशित करते हैं राधा रानी का जो प्रेम हो सर्वोपरि है। राधा का प्रेम, स्वामिनी का प्रेम अनंत असीम है। इसलिए श्री राधा ही श्री कृष्ण के असीम निसीम माधुर्य का संपूर्ण आस्वादन करने में समर्थ है, और किसी का प्रेम असीम नहीं। इसलिए असीम कृष्ण माधुर्य के समग्र आस्वादन में और कोई समर्थ नहीं होता। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। अपने इस प्रेम द्वार, अपने अपने माधुर्य के महाभाव प्रेम के द्वारा, द्वार मतलब के माध्यम से नित्य ही एकमात्र राधा रानी ही आमार माधुर्य अमृत, मेरे माधुर्य अमृत का अकेली ही आस्वादन करती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के अधरामृत से युक्त चर्वित तांबुल का अखंड मतलब समग्र आस्वादन राधा रानी ही अनुभव करती है। वारे वाह, कृष्ण माधुर्य अधरामृत का इतना प्रभाव, इतनी महिमा, जिसका पूर्ण आस्वादन कौन करती है, असीम राधा रानी ही करती है। वो जो राधा रानी द्वारा आस्वादित हो जाता है वही किंकरी को अभिष्ट है। इसलिए किंकरी, हम किंकरी भाव में, हम कृष्ण के अधरामृत के लिए हमारी कोई प्रिया नहीं है। जब तो राधा रानी द्वारा चर्वित नहीं हो जाए वो अधरामृत या जो पान इत्यादि, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही राधा भाव हृदय में रखकर जब श्री कृष्ण अधरामृत का माधुर्य आस्वादन किया तो अखंड अद्वय ज्ञान तत्व उस माधुर्य प्रवाह में किस प्रकार डूब गए। राधा रानी के भाव से जब अपने ही अधरामृत का पान किया ना, तो है तो भगवान कृष्ण रूप अखंड अद्वय ज्ञान तत्व न, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रश्रिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधु देती। राधा प्रियान, राधा रानी के प्रेम, राधा रानी के प्रेम के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि वो जो खुद तो सागर है, सबको डुबोने वाले हैं, वो खुद डूब जाते हैं राधा रानी के प्रेम भाव में। तो राधा रानी के राधा भाव हृदय में रखकर जब श्री कृष्ण अधरामृत का माधुर्य आस्वादन किया तो अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व उस माधुर्य प्रवाह में किस प्रकार डूब गए, इस चैतन्य चेतामृत में से हम पता पड़ता। बहुत अद्भुत वर्णन है 16वें परिचय में। तो स्वामी ने सोचा, इसने इतनी अंतरंग सेवा की है, मुझे सखियों के परिहास से बचा लिया है, तो पुरस्कार देना है तो यह परम आस्वाद्य वस्तु ही किंकरी को देनी है। श्री कृष्ण अधरामृत निषिक्त तांबुल परम आस्वाद्य होते हुए भी श्री कृष्ण अधरामृत से युक्त जो तांबुल जो भगवान कृष्ण ने चबाया है, वो तांबुल परम आस्वाद्य होते हुए भी, राधा रानी के लिए परम वांछनीय होते हुए भी किंकरी के लिए वो आस्वाद्य नहीं है। किंकरी के लिए क्या आस्वाद्य है, जो राधा रानी द्वारा चर्बित हो गया है, राधा रानी का उच्छिष्ट परम अभिष्ट है। भले ही कृष्ण अधरामृत से युक्त तांबुल का बड़ा दुर्लभ है, बहुत
लोभनीय है, राधा रानी के लिए भी परम लोभनीय है, वो कृष्ण किंकरी के लिए परम लोभनीय नहीं है। जब तक राधा रानी उसको चर्वित नहीं करती, राधा रानी के अधरामित से युक्त होकर जो तांबुल है वही किंकरी के लिए अभिष्ट। इसलिए इसलिए दासी को उसके प्रति सीधे सीधे लोभ नहीं है। कृष्ण अधरामित युक्त तांबुल परम आस्वाद्य होते हुए भी दासी को उसके प्रति सीधे सीधे लोभ नहीं है। वह तो स्वामिनी के अधरामित की ही चिर भिखारीन है। जैसे श्रीमती श्री कृष्ण अधरामित को छोड़ और कुछ भी ग्रहण नहीं करती, राधा रानी कृष्ण अधरामित को छोड़ और कुछ भी ग्रहण नहीं करती, वैसे ही दासी भी स्वामिनी के अधरामित के बिना और कुछ खाती पीती नहीं। अतएव युगल का अधरामित ही, युगल का अधरामित, केवल कृष्ण का अधरामित नहीं। और राधा रानी तो कृष्ण के अधरामित के अतिरिक्त कुछ लेती नहीं। और जो कृष्ण राधा रानी के द्वारा के अधरामित से जो युक्त हो जाता है, राधा रानी के द्वारा चर्वित आस्वादित भोग्य हो जाता है, वही प्रसादी रूप में किंकरी। इसलिए युगल का अधरामित ही दासी का चिर काम्य है। कोटि दासी सुवत्सला स्वामिनी, राधा रानी की कोटि दासी है, सभी के प्रति बड़ी सुवत्सला है, बहुत ही उनका प्रीति का भाव है, दुलार जैसा नहीं। कोटि दासी सुवत्सला स्वामिनी किंकरी को उसका अभिलषित चरणामित और अधरामित देकर संजीवित रखती है। यहाँ तो और भी स्नेह भरा निगूढ़ प्रसाद है। चारों ओर देखकर पुरस्कार पाकर दासी कृतार्थ, चारों ओर देखकर तुलसी का गला अच्छी तरह पकड़कर स्वामिनी अपने मुख को अपने किंकरी के मुख में लगाकर उसे तांबुल दान देती है, अपना चर्बी अच्छी तरह गला पकड़कर। स्वमुखान मन मुखे, अपने मुख से मेरे मुख में तुम कब प्रदान करोगी, जो आज की प्रार्थना में आया है। रघुनाथ दास गोस्वामी तुलसी मंजरी के आवेश में, भावावेश में करके अच्छी तरह से पकड़कर अपने मुख से मेरे मुख में मुंह से मुंह लगाकर वह चर्बित तांबुल दिया। पुरस्कार पाकर दासी कृतार्थ, वो सौभाग्य हमें भी कभी मिलेगा। हम राधा रानी की इतनी अंतरंग बनेगी, राधा रानी भी हमें किसी से अंतरंग सेवा से तुष्ट होकर हमें उचित पुरस्कार देगी। जो जो कृष्ण चर्वित तांबुल राधा रानी को जो अति प्रिय है, उस अति प्रिय वस्तु का पूर्ण आस्वादन करके राधा रानी अपना उच्छिष्ट जो तांबुल है, अपना चर्वित, अपने मुख से चर्वित तांबुल है, वही किंकरी को अभिष्ट है। तो उसे अपने मुख को मेरे किंकरी के मुख में लाकर, मुंह से मुंह लगाकर चर्वित तांबुल दिया। पुरस्कार पाकर दासी कृतार्थ, स्फूर्ति का आस्वादन मुंह खोल दिया है, मुंह खोल दिया है पाने के लिए, पर चर्वित तांबुल तो प्राप्त नहीं हुआ। स्फूर्ति में विराम, स्फूर्ति में विराम आ गया। रोदन भरे कंठ से कहने लगी, क्या कहने लगी, क्या कहने लगी बोलो। हे देवी राधिके, तुम चारों ओर देखकर स्नेह से भरकर अपने मुख से निकाल कर मेरे मुख में चर्बित तांबुल कब दोगी, दे दो। तो इतना अद्भुत निरूपण वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी जिस भाव को व्यक्त करके हमारे लिए आदर्श बने हैं, आदर्श, जिससे हम भी उनके चरणों के अनुगत्य को प्राप्त कर सके। मंजरी भाव में ही डूबे हुए, मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, परम उपादेय हम अर्वाचीन साधकों के लिए, अजातरती साधकों के लिए जातरती अवस्था को की तरफ हमें अग्रसर करने के लिए, तो हम इसका बार बार मुश्किल करते हुए पूर्ण लाभ लें। इसी आशा अपेक्षा आकांक्षा को, इच्छा को व्यक्त करते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रश्न। निताय गौर प्रेमानंदे। अंत्य लीला चैप्टर 16,
Krishnadas Kaviraj Goswami also has written Govinda Lilamrita, no? Ashtakali Lila. So in that he describes how each the senses of Radharani hankers for the sense objects of Krishna. Similarly, how Krishna hankers for the fulfillment of his senses, the sense objects of Radharani. The Shabda Sparsha Rupa Rasgandha of one another are hankered by their senses. And we could have read from Chaitanya Charitamrita, but it's very, very amazing. But something we discussed. So if anybody has any question, comment, or addition, then please come forward. हिंदी समझ में आती है थोड़ी? आती है ना? हिंदी तो हिंदी भाषी है. हैदराबाद तो मैक्सिमम हिंदी स्पीकिंग पीपल. हैदराबाद तो कॉस्मोपॉलिटन है. हरे कृष्णा. प्रणाम श्री गुरु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत 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 ही अद्भुत. किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज. I go Sriman. सभी यू कैन अनम्यूट. यहाँ पे Pranam Shri Guru. Hare Krishna. Hare So Krishna. wow. So you captured something out of Hindi also, eh? Well, our blessing was that you spoke quite a bit in English at the beginning. Yes. I had a question. I get lost if I start speaking English, then I lose that most are Hindi listeners. I have to very consciously remain because your presence is naturally there, no? It's very conspicuous. So Conspicuous. Well, okay. I'm grateful. So you want to say something? I just had a question about, you talked Wow. about Question. you talked about the essence of all remembrance, like to hear, like describe the conjugal affairs of Radha and Krishna. You know, the words, the touch, seeing their form, tasting the sweetness of each other, those aspects. If that's for us to remember all the time, how is like service a part of remembrance? Is it a part of remembrance? Yes, very, very good. Actually, you want to serve the object you are so fascinated, you are obsessively remembering, correct? In order Yeah. to be able to remember it, you know, only with service attitude. It's an example sometimes is given about some sports, you know, like entertainment. In order to watch somebody play the sport at such high level, you remember? It is so obsessively attractive that one loses the very desire of playing himself. If somebody is playing some sport at such a high level, all the actions are done by someone else. But the onlooker, the watcher, the person, spectator in the stadium or on the TV, whatever, he feels the excitement greater than 1,000 times greater than the excitement he has by his own playing. You got a point? He loses the interest in his own play by becoming so enchanted, so
so thrilled to see and remember how somebody did this and how that, you can describe the whole. If you watch the whole game, you can like verbatim describe, because it is so obsessively entertaining. It is so amazingly thrilling. That's why the supreme hero and heroine, the divine couple, their play is so superlative. If we, but the very remembrance of it, very contemplating about it, very much describing about it, and when they will have the next play. Correct? When would be the next match? And I want to make sure that I take care of other so-called important things so that I can spare complete time for that match. So basically, in order to get that thrill, you are ready to do anything. You are ready to make all this adjustment, sacrifice. Even if you have to pay some price to watch the match, cable, TV, whatever, all the arrangement you make. So actually, we wouldn't mind serving in any capacity in order to be able to watch or remember the game, or watch the game, hear the game on the radio. How people become so tuned into radio or TV or now the different instruments. So the whole idea is the highest thing to be remembered is the conjugal affairs of the divine couple. They will free us from our worldly male-female affairs, because then we realize that only Radharani is the only heroine, Krishna is the only hero, and we are only meant to serve them. So greater the attraction, greater the desire to serve, because we want to sustain, we want to continue in remembering and appreciating. And our appreciation will keep on increasing with the service attitude. Yes, let them play, continue, let them rejoice. Let them rejoice by the direct participants of that play. And we become the vicarious participants. Vicarious, correct? Appreciating the primary enjoyment of the primary enjoyers and seeing them enjoy, contemplating their enjoyment gives us the joy. So the very nature of the living entity, nature of his seeking pleasure or joy is vicarious to the primary enjoyment of the divine couple. That's it. And that principle is wonderfully described in text number 211 of Madhya Leela, Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 8, text number 211. वही है ना? If you can memorize that sloka, then you will feel so boosted up in that direction. Sakhya Shri Radhika है, तो कौन सा है? 8.2. अब वही तो बोल रहा हूँ, सख्या श्री राधिका है, काम दिखा नहीं. Yes, 8.211 मध्य लीला chapter 8 श्लोक number 211, 211. Got it. Thank you. Okay, and just memorize this. सख्य श्री राधिकाया ब्रज कुमुद विधोर लादिनी नाम शक्ति सारांश प्रेम वल्या दल किसलय पुष्पतुल्या स्वतुल्या सिक्तायां कृष्ण लीलामृत रस निचयैर उल्लसन्त्याममुष्यां जातोल्लासा स्वसेकात् शतगुणमधिकं संति यत्तन्न चित्रम. So this slok you memorize, then you will keep dancing all the times. Hare Krishna. And so how do we know how to act practically in this realm from Sri Guru? Is that how we
know what to do practically, Yeah, physically. it's a bond. It's a bond where you feel the strong bond with someone imbued with the same sentiments and bhava which we aspire for ourselves. And that bond will cause the infection, you know. So this only through association we become infected, correct? Like the Mhm. corona disease, if you associate with the corona patient, then you get infected also. The same thing, if we are able to, if we become blessed to associate with the person infected with this Radha Dashyam Bhava, then inevitably we will be contacted, you know. It is contagious. And that's the only way, because there is no other way. Only through subservience we become infected with the bhava or the greed. So we have to spot a greedy person, greedy for that. There is no other way, you know. No other endeavor, no other sadhana, no other procedure will make us get it. We simply have to just spot, identify the person who is infected with that sentiment, and by associating, if we become so blessed that we become infected, then in due course you will infect others. Correct? So, Nitai Gaur Premanandi. Yes. so it will just spontaneously come from the heart, like what to engage in and what to Yes. do. Yes. Because we cannot hanker for more than one thing of opposite nature simultaneously. Correct? Yes. So we will be sorted out. Hi, Bol. Hare Krishna. Thank you so much. Pranam, Sri Guru. Hare Krishna, Sri Swamini Matira. All right? All right then. और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। All right then, we can wind up. प्रणाम श्री गुरु। Hare Krishna. हरे कृष्णा। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? Sure. ऑफ कोर्स आज भी जो मोती आपने भी खेले वो अद्भुत एहसास स्वामी जी और किंकरी के जो अद्भुत उनके संबंधों की जो मधुरता का एहसास मानो खिल जाता है। और भी जब आपकी लोटस माउथ से वो निकलते हैं, जब भी आपकी शेयरिंग होती है, जब भी ऐसा लगता है हर बार ये वर्ड्स तो बोलने का बहुत मन करता है। मानो बिल्वा मंगल ठाकुर ने ये कहकर बहुत बड़ी एक हेल्प कर दी। मधुरम 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 हर एहसास मेरे श्री गुरु का मधुरम 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 बरसों से मानो पिपासु ये हृदय कि वंचित हो राधे श्याम की सेवा से साक्षात। पर जो आकर
श्री गुरु आपने दिया वही एहसास मानो अपनी सेवा में, यूं लगा जैसे जब कभी मिलेगी आपकी कृपा से स्वामिनी की चरणों की सेवा, अलग तो ना होगा वो एहसास जो मिलती है आपके चरणों की सेवा से। ऐसा लगता है जितना भी कहूँ उतना कम है। मानो मानो जाने कितने युगों के इंतजार के बाद श्री गुरु जीवन में आते हैं और वो स्वामिनी का एहसास लेकर अगर हृदय में यूं एंटर कर जाते हैं तो जैसे हर एक एहसास कितना मधुरम और कितना अद्भुत महसूस होता है। चाहे एक निमिष की हो, जो एक निमिष की भी चरणों की सेवा जो आपकी मिल पाए, जो आप दे रहे हो, जो आपने दिया, यूं लगता है जैसे मानो उस एक निमिष में कितने युगों के इंतजार की जो न जाने कितनी योनियों में जो भटक के जो दर्द वो सब मानो उस एक निमिष में जो आपके एहसासों के अमृत बहते हैं उसमें वो सब कुछ जैसे मिठास में बदल जाती है। आप हमेशा ये कहते हो सेवा रस से बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता, और वो सेवा कर जब श्री गुरु के चरणों की सेवा जब मिलती है तो उसका सुख का एहसास क्या हो सकता है, वो आप अपनी ही कृपा से महसूस कराते हो। आप कहते हो हमेशा कि हर एक जीव आनंद की खोज में ही है, तो आनंद, सर्वाधिक आनंद जो मैंने महसूस किया है वो तो है श्री गुरु के चरणों की सेवा में ही। इतना प्यारा ये अभिमान है श्री राधा किंकरी का, जो देना चाहते हो आप, ये पाषाण हृदय भी भीग जाता है आपकी अमृत वाणी की मधुरता के एहसास से। जाने कितनी मिठास बरसती है जो एक प्रेम भरी निगाह से कृपा आप बरसाते हो, बस कहने को दिल ये करता है तब मधुरम 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 मधुरम। हर एक निमिष मानो ऐसा लगता है असीम में कितना कण या फिर कण में बहुत असीम, एक निमिष में की सेवा में असीमता का एहसास, पर वो क्षण मात्र जाने मानो और भी कितनी अतृप्तता हृदय में भर देता है, और भी
लालसा हृदय में भर देता है। तो बस इतनी ही ये कृपा कि ये लालसा, ये सेवा की लालसा हर पल हर निमिष यूं ही और भी और भी और भी बढ़ती ही चली जाए, क्षण मात्र भी शमित ना हो। जाने क्या अद्भुत एहसास है इन चरणों की सेवा में कि मानो बस बस हृदय इन्हीं चरणों की सेवा के लिए खिंचा चला जाता है कहीं से भी। और जो दूर होता है इस सेवा से, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ सब कुछ वीरान हो गया है। सेवा में जो सुकून और जो एहसास आप महसूस करवाना चाहते हो, कितना वो संपूर्ण रूप से तो महसूस करना मेरे जैसे अयोग्य के लिए संभव नहीं, पर आपकी कृपा से जो कण मात्र महसूस होता है, वो उसके लिए धन्यवाद शब्द या ऋणी शब्द, ये सब कुछ बहुत बहुत कम लगते हैं, बहुत तुच्छ लगते हैं। पर हाँ, फिर भी थैंक यू सो मच का कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु कि अपने चरण कमल की सेवा का जो अवसर आप हमें प्रदान कर रहे हो, क्योंकि क्योंकि ये सेवा, इस सेवा में क्या है ये तो बता नहीं सकती। बस बस इतना मधुरम 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 मधुरम। अपनी इस सेवा से कभी वंचित ना करना, चाहे चाहे प्राण रहे ना रहे, पर मिले हमेशा मेरे श्री गुरु रूपी स्वामी जी की चरणों की सेवा। और हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बात और जो आज के श्लोक से जो कितनी मिठास, जब कि ये कि एक मंजरी किस तरह से, जिसमें वर्णन किया कि किस तरह से स्वामी ही केवल मात्र पूर्ण रूप से कृष्ण के माधुर्य का अनुभव कर सकती है, और इसलिए कृष्ण के उच्छिष्ट का एहसास भी, उसमें घुला हुआ अमृत भी सर्वाधिक स्वामिनी ही मानो महसूस कर सकती है। और उसी तरीके से मंजरिया जो कृष्ण के उच्छिष्ट के प्रति उदासीन है, पर उन्हें तो केवल और केवल चाहिए अपनी स्वामिनी की उच्छिष्ट, कि उसी में वो अमृत का एहसास, और उसी के लिए वो लालायित रहती है। और स्वामिनी इस बात से अनजान नहीं। तो ये जो स्वामिनी और मंजरियों का जो अद्भुत सा नाता है, ये बहुत आकर्षित करता है। और मानो इसी नाते की छवि, इसी नाते की साक्षात छवि आप हमारे जीवन में लेकर आए हो। ध- धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल निताय बोल।
हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु रूप स्वामिनी के सम्मान में प्रियता और पुण्यगत भाव से। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु रूप स्वामिनी निज भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय है, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी मते से एवरीवन। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा वेलकम 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 श्री स्वामी मते से। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा श्री स्वामी मते अस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि। So this Monday, the next Monday, Vrindavan. गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।